Good morning. Let's do some illustrations of non-profit organizations, accounting. From the following details provided by a hospital, calculate the medicine expense of 2019-20. ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो साथ साथ. पेमेंट्स फॉर मेडिसिन प्रीवियस ईयर, दो कॉलम दिए हुए हैं हमें, एक 2019 ईयर एंडिंग का, अनदर इज 2020 ईयर एंडिंग. ठीक है, पेमेंट फॉर मेडिसिन 58,000 and 76,000. Then stock of medicines 20,000, 25,000. Creditors for medicines 35,000, 28,000. Advance paid for medicines 5,000 and 12,000. ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मेट बना लो, कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन एक्सपेंस ऑफ अराउंड 10 लाइन्स. Okay, now let's start placing the amounts. First, we will begin with amount paid for medicines during the current year, 76,000. The amount that was paid in previous year has no relevance now for this calculation. So 58,000 का कुछ नहीं करना है. 76,000 current year payment will be our starting point. Then stock of medicines, opening stock will be added. So opening stock in plus column 20,000. Closing stock को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं. So closing stock minus column 25,000. Then creditors for medicines. Creditors मतलब amount which was outstanding, the payment which was outstanding in the beginning. Outstanding in the beginning को हम क्या करते हैं, we subtract it. So creditors at the beginning minus column 35,000. And creditors for medicines at the end 28,000. Amount outstanding at the end, what do? We add it. So creditors at the end in plus column 28,000. Nikhil, good morning. Good morning, sir. We are doing this some illustrations of NPO. Right now, this is the question we are doing for calculation of medicine expense. ठीक है, आपने लेट ज्वाइन किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे का आप कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन. Okay, sir. ले लिया. Okay. Advance paid for medicines. प्रीवियस ईयर में जो अमाउंट एडवांस में मिला होता है उसे हम क्या करते हैं, ऐड या लेस? We add it because previous year में एडवांस मिला था तो वो करंट ईयर के लिए मिला था, तो इसमें प्लस कॉलम में 5,000. और जो एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस है, दैट मींस एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर, इसे क्या करेंगे?
सर ऐड कर देंगे। बिगिनिंग वाला ऐड करते हैं, क्लोजिंग वाला लेस करते हैं, तो इसे हम ऐड करेंगे। ठीक है, एडवांस पेड एट द एंड माइनस कॉलम में 12,000। अब टोटल कर लो, प्लस कॉलम का टोटल देखो कितना आ रहा है और माइनस का। प्लस कॉलम का टोटल आ रहा है 1,29,000 और माइनस कॉलम का टोटल आ रहा है 72,000। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? 57,000. That is the medicine expense for current year. Now let's do another illustration. ये क्वेश्चन लिख लो। Find the amount of subscription received in year 2019-20 from the following information. Subscription अब देखो received निकालना है, इनकम हमें दी हुई है यानी रिवर्स चलना है। ठीक है, subscription income is given, we have to find out the amount of subscription received, means income expenditure वाला amount दिया हुआ है, receipt payment वाला amount हमें निकालना है, तो रिवर्स चलना होगा। ठीक है, subscription income of the year 2019-20 रुपीज 55,000, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। received rupees 15,000 for 2018-19 मतलब प्रीवियस ईयर, 12,000 for 2020-21 means next year, and 8,000 for 2021-22 उसका भी next year. Then second point, subscription received in advance as on 31st March 2019 was rupees 17,000, previous year में end में जो advance थी। For 2019-20 accrued subscription is rupees 10,000, means current year के लिए जो accrued subscription है, and 31st March 2019 accrued subscription previous year के end पे accrued subscription कितनी थी? 20,000. Now if we see carefully, out of 20,000 accrued subscription of previous year, 5,000 is still accrued at the end of current year. ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि देखो accrued subscription फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है on 31st March 2019 was 20,000. ठीक है, अब अगर ध्यान से फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ें, रिसीव्ड रुपीज 15,000 फॉर 2018-19 मतलब 20,000 accrued था लास्ट ईयर के एंड में, जिसमें से 15,000 मिल चुका है इस साल। दैट मींस 5,000 is still accrued at the end of current year. फॉर्मेट बना लो, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अराउंड 10 लाइन्स। Okay, so let's begin now. Starting point will be subscription income of the year. So subscription income of the year plus column 55,000. Then received 15,000 for 2018-19. इसमें से पिछले साल का जो मिला था, अगर हम रिसीट पेमेंट वाले अमाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ रहे होते हैं तो पिछले साल वाले अमाउंट का जो पिछले साल का जो अमाउंट मिला होता है उसे हम लेस करते हैं।
बट अब रिवर्स चल रहे हैं इनकम से पेमेंट की रिसीट की तरफ, तो ऐड हो जाएगा रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर प्लस कॉलम में 15,000। सिमिलरली 12,000 और 8,000 ये जो एडवांस में मिले हैं नेक्स्ट ईयर्स के लिए, तो ये मिले तो इसी साल है, तो इसलिए ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, ये सेकंड पॉइंट आ गया। रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर 17,000 प्रीवियस ईयर में मिला था, तो इसलिए लेस होगा। और नेक्स्ट 2 ईयर्स वाले एज आई वाज सेइंग 12,000 एंड 8,000 ये ऐड हो जाएंगे बिकॉज मिले इस साल है। आई एम रिपीटिंग अगेन, in this one we are moving in the reverse direction. Income is given, we are finding out the amount received this year. तो इसलिए इनकम निकालते हुए जो ऐड होते थे वो यहां पर लेस हो जाएंगे, जो लेस होते थे वो यहां पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, फॉर 2019-20 एक्रूड सब्सक्रिप्शन 10,000। इसका मतलब ये 10,000 तो हमें मिली नहीं है, मिली नहीं है तो इसे लेस कर देंगे। एक्रूड फॉर करंट ईयर 10,000। ठीक है, प्रीवियस ईयर की एक्रूड थी 20,000, उसमें से 15,000 इस साल मिली है तो वो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, बाकी 5,000 का हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब टोटल कर लो प्लस और माइनस कॉलम्स का। प्लस का टोटल आ रहा है 90,000 और माइनस का टोटल आ रहा है 27,000। सो द डिफरेंस इज 63,000 subscription received in 2019-20. Is it clear? ये लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Written? Okay. Now let's move to the next question. अच्छा, उससे पहले एक नोट लिखो। Sometimes in the question we are given how many members are there and how much is the subscription per member. तो उस केस में डायरेक्टली हम अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन इनकम का फॉर द ईयर if number of members and subscription or membership fees per member are given. Income for subscription or the membership fees can be directly calculated. How? Simply multiply the two. Number of members multiplied by subscription or membership fees per member. Suppose we are given there are 50 members and each has to pay a subscription of ₹10. So 50 into 10, that means total subscription income should be 500 rupees. ठीक है? Now you will attempt questions 1 to 5 from the book. Let's do this next question. ये क्वेश्चन आप लिख लो और 3 फॉर्मेट्स बना लो, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, अराउंड 15 लाइन्स ईच। क्वेश्चन लिख लो, फॉर्मेट्स बना लो, फिर कंटिन्यू करते हैं।
Okay, shall we begin? Okay. पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एडजस्टमेंट्स मार्क कर लेते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में. ठीक है. सबसे पहले देखो हमें दिया हुआ है एक्रूड ट्यूशन फीस. तो ये ट्यूशन फीस से रिलेटेड है, तो ट्यूशन फीस के आगे 1 लिख लो. Then we are given stock of stationery relates with stationery, so write 2 in front of stationery. Then building is given. Building से related देखो receipts and payments में कुछ है, building fund है लेकिन building नहीं है. ठीक है. तो उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल है. स्पोर्ट्स मटेरियल हमें रिसीट पेमेंट में भी दिया हुआ है, उसके आगे 4 लिख लो. फर्नीचर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी दिया हुआ है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में दोनों साइड दिया हुआ है, रिसीट साइड भी और पेमेंट साइड भी. तो रिसीट साइड, पेमेंट साइड पे लिख लो फर्नीचर के आगे 5, और डेबिट साइड पर यानी रिसीट साइड पर लिखो 5, सी. सी का मतलब कॉन्ट्रा, मतलब पेमेंट साइड पर भी इसकी एंट्री है, वो भी ध्यान रखनी है. Now let's start placing the various items. First of all, we are given 2 balance brought down of bank, means opening balance of bank. Where should this come? In opening balance sheet, asset side, bank 70,95,000. Then 2 tuition fees, 50 lakh. Tuition fees is an income, so it will come in income and expenditure account, credit side. By tuition fees, inner column 50 lakh because इसकी adjustment भी है. और adjustment क्या है? Accrued tuition fees, previous year 2400. तो previous year में जो accrued थी वो इस साल मिली होगी, but that is not an income of this year, so that will be subtracted of previous year minus 2400. And 2800 which is at the end of current year, that means this is the accrued tuition fees of this current year, so it should be added. Plus 2800, तो ट्यूशन फीस का नेट अमाउंट आ जाएगा अमाउंट कॉलम में 50,04,00,000. Then next is 2 annual charges. अब नाम से लग रहा है चार्जेस कोई पेमेंट होगी, लेकिन रिसीट साइड पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये इनकम है. चार्जेस मेंबर्स के लिए है, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्कूल के लिए आपकी भी फीस स्लिप में एनुअल चार्जेस होते हैं ना, तो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के लिए वो चार्जेस हैं, स्कूल के लिए तो वो इनकम है. अच्छा, उससे पहले हम ट्यूशन फीस की जो एडजस्टमेंट की थी उसके सेकंड इफेक्ट लिख लेते हैं. पहले जो ओपनिंग वाला अमाउंट था वो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में एक्रूड ट्यूशन फीस 2400, और जो क्लोजिंग वाला बैलेंस था वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे एक्रूड ट्यूशन फीस 2800. फिर इनकम में लिखो बाय एनुअल चार्जेस 40 लाख.
Then next item we are given is building fund. स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो गया, तो फंड कहां पर आएगा? ये स्पेसिफिक फंड्स कम इन बैलेंस शीट, सो दिस विल कम इन क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि करंट ईयर में मिला है, पहले से इसका कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ. सो बिल्डिंग फंड अमाउंट कॉलम में 70 लाख, सॉरी 70,000. देन लेगेसी डोनेशंस. लेगेसी डोनेशंस दी हुई है, लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं बताया हुआ. स्पेसिफिक पर्पस होता तो ये बैलेंस शीट में स्पेसिफिक फंड में आ जाता. अदरवाइज दिस विल कम इन इनकम. सो बाय लेगेसी डोनेशंस 99,460. Then we are given two furniture, book value 1,48,000 and amount is 1,50,000. इसका क्या मतलब हुआ? 1,48,000 जिस फर्नीचर की बुक वैल्यू थी वो 1,50,000 में सेल हुआ है. दैट मींस फर्नीचर की सेल पर हमें 2,000 का गेन हुआ है. ठीक है. अब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट अगर हम देखें, फर्नीचर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में, फर्नीचर 2,15,000. एंड वेयर विल इट सेकंड इफेक्ट कम? इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑल्सो, इनर कॉलम. प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस था करंट ईयर में स्टार्टिंग वहीं से होगी, तो फर्नीचर इनर कॉलम में 2,15,000. उसमें से 1,48,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर सेल हो गया. एसेट्स में से हमेशा सेल के टाइम पे सिर्फ बुक वैल्यू लेस होगी, तो सोल्ड माइनस 1,48,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में. और जो 2,000 का गेन है वो कहां पर जाएगा? दैट विल कम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बाय गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000. अब इसकी कॉन्ट्रा भी हमने लिखा हुआ है, मतलब पेमेंट साइड पे भी फर्नीचर की कोई एंट्री है. क्या है? बाय फर्नीचर 1,60,000 पेमेंट है. दैट मींस दिस मच अमाउंट हैज बीन स्पेंट ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर. सो परचेज्ड प्लस 1,60,000. और अब नेट अमाउंट आ गया फर्नीचर का अमाउंट कॉलम में 2,27,000. परचेज्ड वाला अमाउंट एक ही जगह जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना है whatever amounts we pick from receipt and payments account amount column, they are treated only at one place. All amounts that we pick from additional information, means outside receipts and payments account amount column, they are treated at two places to complete the double entry. ये 1,60,000 क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट्स के अमाउंट कॉलम से आया है, तो इसका एक ही जगह ट्रीटमेंट होगी. देन नेक्स्ट पेमेंट साइड, फर्स्ट आइटम वी आर गिवन इज स्टेशनरी. स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस, सो दिस विल कम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंस साइड, डेबिट साइड, टू स्टेशनरी, इनर कॉलम 3 लाख. लेकिन इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट भी है. क्या एडजस्टमेंट है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक विल गेट एडेड टू इट. सो ओपनिंग स्टॉक प्लस 80,000. क्लोजिंग स्टॉक विल गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट. और ओपनिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में भी एसेट्स में आएगा 80,000.
क्लोजिंग स्टॉक -95,000, तो नेट अमाउंट आ गया स्टेशनरी का अमाउंट कॉलम में 2,85,000. एंड सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस क्लोजिंग स्टॉक in closing balance sheet asset side, stock of stationery 95,000. Return. Okay, next is buy general expenses. This is also an expense, so expenditure side, to general expenses 4,000. Salaries, again expense, to salaries 60,65,000. फर्नीचर हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अगेन एन एक्सपेंस, सो टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 7,500. देन स्पोर्ट्स मटेरियल. स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, पेमेंट में है तो इसका मतलब परचेज, सो दिस इज एन एक्सपेंस टू स्पोर्ट्स मटेरियल, लेकिन इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट्स हैं. 2,50,960 is the amount of purchase of the amount of payment. Opening stock will get added. So opening stock plus 8,000. और second effect क्या होगा opening stock का? Opening balance sheet में sports material 8,000. Closing stock will get subtracted over here. So closing stock -6,000, and we get net amount of sports material in amount column 2,52,960. And second effect of this closing stock in closing balance sheet assets column, sports material 6,000. Then we are given balance carried down of bank. That means closing balance of bank. So it will come in closing balance sheet asset side. Bank 96,27,000. Now let's just go through additional information and see whether we have placed all the things or not. Accrued tuition fees, yes, treated. Stock of stationery, yes, done. Building अभी नहीं हुई. Opening balance भी 5 लाख, closing भी 5 लाख. इसका मतलब दोनों बैलेंस शीट्स में एक ही अमाउंट आ जाएगा. बिल्डिंग का एसेट्स में 5 लाख. Then sports material we have treated, furniture we have treated, all amounts placed. Now first of all we will always close the opening balance sheet. Opening balance sheet में total देखो कितना आ रहा है asset side का. It is 79,400,000. So that means और liabilities side पर कुछ है ही नहीं. इसका मतलब this is the amount of capital fund. 79,400,000 is the opening capital fund. This means now this total लिख लो दोनों साइड पे बैलेंस शीट में. नीचे डबल लाइन, ऊपर सिंगल लाइन. Now this capital fund amount will be the starting point in the closing balance sheet for capital fund. तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड इनर कॉलम में 79,400,000 जो पिछले साल से कैपिटल फंड का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ.
Then we will close income and expenditure account. इसमें देखो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 91,01,860. क्रेडिट साइड इज मोर. ठीक है, ये यहीं से पता चल रहा है 50 और 40 90 लाख के तो यही दो अमाउंट हो गए, जबकि डेबिट साइड पर 60 लाख 2 लाख 2 लाख तो कम है अमाउंट. डेबिट साइड का टोटल करके डिफरेंस निकालेंगे, वो आया 24,87,400. This is the amount of surplus. Remember I told you in case of non-profit organizations, प्रॉफिट की जगह हम टर्म यूज करते हैं सरप्लस, लॉस की जगह हम टर्म यूज करते हैं डेफिसिट. इस केस में इनकम ज्यादा है तो वी आर गेटिंग सरप्लस. टू सरप्लस 24,87,400. Now where will this surplus amount go? This will get added in the capital fund. So surplus plus 24,87,400 and the net amount of capital fund that we get is 1,03,87,800. Now let's total the balance sheet. It's 1,04,57,800. Right on both sides. चेक कर लेना एसेट्स का भी टोटल, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन टोटल अमाउंट के. ये सब लिख के बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन करते हैं फुल फ्लेज्ड. Let's move to the next question. क्वेश्चन लिख लो और फॉर्मेट्स बना लो पिछले क्वेश्चन की तरह ही. Okay, now let's mark the adjustments as earlier. First we are given accrued subscription, तो subscription के आगे 1 लिख लो. Then we are given stock of medicines, medicines के आगे 2 लिख लो, second adjustment. Third is building, building देखो receipts and payments में कहीं दी हुई है, नहीं दी हुई. Next is advance subscription, सब्सक्रिप्शन के आगे एक और आ गया फोर्थ. देन इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट से रिलेटेड पेमेंट साइड पे दिया हुआ है बाय इक्विपमेंट्स, तो उसके आगे लिख लो 5. लिख लिया? Yes, sir. Okay. Now let's begin. Balance brought down bank. Where will this come?
सर वर्किंग नोट्स बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में, वेरी गुड, एसेट साइड पे बैंक 75,300। Then subscription, where will this come? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Income and expenditure account. Income. Very good. So by subscriptions 4,70,000 inner column because adjustments भी हैं इसकी. Now let us read adjustments of subscription. First and fourth. पहले first पढ़ते हैं. Accrued subscription previous year amount is 2,400. इसका क्या होगा? लेस। Very good. So of previous year minus 2,400. And what will be its second effect? ऐड हो गए। प्रीवियस ईयर वाली जो एक्रूड सब्सक्रिप्शन थी वो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगी। एक्रूड सब्सक्रिप्शन 2,400। व्हाट अबाउट क्लोजिंग अमाउंट ऑफ एक्रूड सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर वाला अमाउंट? सर इनकम अकाउंट में ऐड हो गई। Yes. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम में ऐड हो जाएगा एक्रूड प्लस 2,800 एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड। यस, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में एक्रूड सब्सक्रिप्शन 2,800। यस सर। अब फोर्थ एडजस्टमेंट भी है सब्सक्रिप्शन की, उसमें क्या दिया हुआ है? एडवांस सब्सक्रिप्शन। प्रीवियस ईयर के एंड में एडवांस सब्सक्रिप्शन वाज 600। हाउ विल वी ट्रीट दिस? सर ऐड। वेरी गुड। इनकम में ऐड हो जाएगा एडवांस इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में मिली थी तो मतलब करंट ईयर के लिए मिली थी, सो प्लस 600। लायबिलिटीज हो गई। वेरी गुड। एंड सेकंड इफेक्ट, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस 600 and closing balance of advance subscription. सर सब्ट्रैक्ट हो गई। Yes, because these have been received in current year for next year. Advance for next year minus 1,000 और subscriptions का net amount निकाल के amount column में लिख देंगे, which is coming out to be 4,70,000. Second effect for advance subscription closing balance. So closing balance sheet liability side. Excellent. Closing balance sheet liability side, subscriptions received in advance 1,000. ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन आया नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिख लेना सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस। Then next we are given interest on investments 80,000. तो interest on investment is an income. इनकम में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 80,000। यहां पर ब्रैकेट में दिया हुआ है एट 8% पर एनम। इससे इसका क्या मतलब है? इंटरेस्ट तो हमें दे ही रखा है, फिर हमें कैलकुलेट क्या करना है? इससे हमें पता चलेगा इन्वेस्टमेंट कितनी थी। अगर 8% इन्वेस्टमेंट का 80,000 है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 80,000 इंटू 100/8। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास थी 10 लाख रुपीस की। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स हम एसेट्स में दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में 10 लाख। पिछले साल से कंटिन्यूड होंगी तभी पूरे साल का इंटरेस्ट लगा होगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट
और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों में इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी 10 लाख। Then charity show receipts. It's an income. By charity show receipts 99,460. Then we are given two donations. कोई पर्पस स्पेसिफाइड नहीं है, जनरल डोनेशंस हैं, so this will be an income. By donations ये अमाउंट कॉलम में लिख लेना 1,50,000, इसमें नीचे आ गया है गलती से। Then payment side by medicines. It's an expense for a hospital. Medicines is a routine expense. So two medicines, inner column 3,10,000 क्योंकि adjustments भी हैं इसकी। Second adjustment, stock of medicines, opening stock will get added 88,000 and this will also come in opening balance sheet. Stock of medicines 88,000. Closing stock of medicines will get subtracted in the expense minus 95,000 and we get net amount of medicine expense 3,03,000. Second effect of closing stock, in closing balance sheet, stock of medicines 95,000. Then next we are given general expenses. Expenditure में आ जाएगा to general expenses 4,510. Then we are given by salaries. ये भी expense है. So expenditure side पर two salaries 3,65,000. Then we are given equipments, लेकिन इसकी adjustment भी है. Fifth point in additional information, equipments का opening balance दे रखा है 2,15,000. तो starting हम इससे करेंगे. Where will this amount come? इसका मतलब 2,15,000 equipments का opening balance था. तो opening balance sheet में asset side पर equipments 2,15,000. And its second effect in closing balance sheet also asset side, this will be the starting point. Equipments inner column 2,15,000. Then in payments we are given by equipments 1,60,000. इसका मतलब 1,60,000 का equipment purchase किया है, ठीक है? तो ये पहले के इक्विपमेंट के बैलेंस में ऐड हो जाएगा, परचेज्ड प्लस 1,60,000. एंड सिंस दिस अमाउंट इज गिवन इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये एक ही जगह ट्रीट होगा 1,60,000. देन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विपमेंट्स इज गिवन 3 लाख. अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें 2,15,000 और 1,60,000, हाउ मच डू वी गेट? वी गेट 3,75,000. लेकिन यहां पर हमें दिया हुआ है इक्विपमेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख. तो इसका मतलब 75,000 के इक्विपमेंट्स कम हो गए. अगर और कुछ नहीं दिया हुआ हम मानेंगे उतने अमाउंट का उस पे क्या हो गया? डेप्रिसिएशन चार्ज. सो डेप्रिसिएशन माइनस 75,000. 75,000 के नीचे लाइन ड्रॉ कर लेना और नेट अमाउंट अब इक्विपमेंट्स का क्लोजिंग आ गया 3 लाख अमाउंट कॉलम में. And this 75,000 is not given in receipt and payment account. Obviously depreciation is a non-cash expense. तो इसका सेकंड इफेक्ट भी आएगा कहां पर?
It is an expense. So expenditure side, to depreciation on equipments, 75,000. Then charity show expenses, another expense. So expenditure side, to charity show expenses, 7,500. Then we are given balance carried down, means closing balance of bank. So closing balance sheet, asset side, bank 27,750. Now let us see the additional information. Have we placed all the items or not? Accrued subscription, treated. Stock of medicines, done. Building, again building अभी तक नहीं आया, तो building opening balance is 4 lakh. So this will come in opening balance sheet asset side, building 4 lakh. And this will be the starting point in closing balance sheet asset side, building inner column 4 lakh. But the closing balance we are given is 3,80,000. इसका मतलब 20,000 कम हो गई. That must be depreciation. So depreciation minus 20,000. Net amount 3,80,000 in the amount column. And second effect of this depreciation will come in income and expenditure account, expenditure side, to depreciation on building. अमाउंट ये अमाउंट कॉलम में लिख लेना. अगेन नीचे आ गया है गलती से, ये अमाउंट कॉलम में लिख लेना. ये टेक्निकल चीजों में ना कई बार इस तरह के ग्लिचेस हो जाते हैं. Advanced subscription we have treated, equipments we have treated. So now first of all we will close the opening balance sheet. Assets total is coming 17,80,700 और लाइबिलिटी साइड पे सिर्फ 600 है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगी? 17,80,100. It is the capital fund at the end of previous year. टोटल दोनों साइड लिख लो और टोटल के ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन. Now this capital fund amount will be the starting point in the closing balance sheet. Capital fund inner column 17,80,100. Now we will close income and expenditure account. डेबिट साइड पे देखो 3 लाख, 3 लाख, 6 लाख तो यही हो गया. क्रेडिट साइड पर 4 लाख है, सिर्फ 1 लाख वाला अमाउंट. इसका मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 7,99,460 is the total. इसमें कोई एक अमाउंट नहीं आया है क्या? 4,70,99,460, 80. ओके, क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, 7,99,460. ये 1,50,000 डोनेशंस का जो इधर आ गया था ना नीचे, वो मिस कर दिया था मैंने. तो ये भी अगर इंक्लूड करेंगे अमाउंट कॉलम में, टोटल आ रहा है 7,99,460 क्रेडिट साइड का, और डिफरेंस आ रहा है 24,450. दैट इज सरप्लस, टू सरप्लस 24,450. This surplus will be added to capital fund.
सो सरप्लस प्लस 24,450, इसके नीचे लाइन आएगी नेट अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड 18,04,550। अब बैलेंस शीट के टोटल्स निकाल लो। इट इज 18,05,550 ऑन बोथ साइड्स। टोटल के ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन। Any doubt in this now? Any doubt, Nikhil? No, sir. Okay. तो अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्लियर है पूरी तरह से? Yes, sir. Okay, good. This completes our chapter of non-profit organization. Thank you.